Yeah, yeah, good morning, everyone. So, in the last class, we did talk about independent events and also we considered problems based on that. Today, I'll begin the class by considering three, four more problems, maybe a little bit different, but based on the CBSE past year board examinations from the same topic, independent events. And if time permits, then I will introduce the idea, a very, very important theorem, Bayes theorem. And as per the latest sample paper as well, a case study came from this particular subtopic. And we do expect a 5 marker question directly from Bayes theorem this year as well. Check out this problem. A problem is given to three students whose chances of solving this are 1 by 3, 2 by 7, and 3 by 8. So let's say the first person probability of solving, and this is the event second person solve, and C is the event that third person solves the problem. Now the question is, what is the probability that the problem is solved? So what we need to find probability that the problem is solved. How many cases would be there total? And you need to think logically. ठीक है Sir, मैम हम देख 7. लेते हैं हाँ देख लेते How many? 7, sir. 7. 7 possibilities. हैं वो ये कह रही Okay. Yes, sir. Okay. Chalo. Or can I say this is 1 minus probability that problem is not solved? Yes, sir. Now you just need to understand the difference. Considering all those 7 cases, writing their sums, their probabilities, of course you will get the answer, but that would be, of course, a very tedious and a lengthy process. But just applying a simple logic, 1 minus probability that the problem is not solved. Now the problem will not be solved when A will not be able to solve, and B will not able to solve, and C will not able to solve. And this is obvious that A, B, C, they are working independently on this problem, though this word is not mentioned that they are working independently, but the idea is common sense. So if A, B, C are independent, so is A dash, B dash, and C dash. So this will become, by using the formula, and what is P of A dash? Well, we can calculate from here. So 1 minus 1 by 3 types like this. P of B would be 1 minus 2 by 7, and P of C would be 1 minus 3 by 8, which is 5 by 8. So 2 by 3 into 5 by 7 into 5 by 8. Solve it, you will have your required answer. But otherwise, the one, I think 2, 3 students, those who have responded and thought, possibly yes, 7 cases बनेंगे इस तरह से, बहुत ज्यादा बनने वाले हैं. Exactly, actually 7 ही आ रहे हैं. But I think this logic is important and clear, क्योंकि इससे हमारा प्रॉब्लम बहुत इजी वे में हमने हैंडल कर लिया है. इफ यू आर इंटरेस्टेड, नो प्रॉब्लम, आप इसको होमवर्क में ट्राई करें यूजिंग द ऑल्टरनेटिव वे. ऑल्टरनेटिव वे का मतलब 7 केसेस जो बनकर आएंगे उसके अकॉर्डिंगली, देन यू विल एक्चुअली रियलाइज द रेलेवेंस ऑफ दिस शॉर्टकट अप्रोच.
A can hit target 4 times in 5 shots. B can hit B can hit 3 times in four shots. C 2 times in 3 shots. So simply the probability of A hitting the target is 4/5. P of B, it's 3 times out of 4. So 3/4. And P of C is simply 2/3. So this is the first thing one can easily observe. Let me write P of A dash, which would be 1/5, because definitely it would be required. So this is 1/4, and P of C dash 1/3. Find the probability that A, B, C all may hit. So all may hit. How many cases would be there? सोचिए, how many cases? 1 बनेगा सर. Yes, there will be only one possibility, और वो भी कौन सी है? A ने कर लिया हिट, and B ने किया, and C ने किया. Or clearly they are independent. So is this formula, and this is given by 4/5, 3/4, 2/3. Your answer. Check out second part. BC में hit, A loses. तो अब क्या हो रहा है? B ने किया, C ने किया, but A loses. I hope this is simple and clear, so that it will take the following form. B and C दोनों hit कर लें, and A loses this. Just wait for a second. Okay, so we have a direct formulas over here. Substitute, use them. Your answer. Consider third part. अब ये logical है. Any two of ABC hit. फिर अगेन यूज तो कॉमन सेंस ही करना है. एनी टू हिट, इसका मतलब मैंने कहा ए और बी ने कर लिया, सी ने मिस कर दिया. नहीं तो ए ने मिस कर दिया, बी और सी ने हिट कर दिया, क्योंकि ये कहा है कि दो कोई भी इन तीनों में से हिट करेंगे. नहीं तो क्या हो सकता था? बी मिसेस दिस. So that this is P of A
P of B, P of C dash, and similarly splitting for this because they are independent, use their respective formulas. What about the fourth part? None of them hits the target. Again, very simple. A भी ना कर पाए, B भी ना कर पाए, and C भी ना कर पाए. None of them. तो फिर से ये आपस में इंडिपेंडेंट हो गए, and we have the simple formula and hence the answer. Now this is a challenging question. Think about this. I'm giving you 2 minutes. पहले एक बार लॉजिकली अपने आप सोचिए क्या आपके दिमाग में आता है. Anyone? सर 2 मिनट्स और दे दो सर. ठीक है, सोचिए. लॉजिकल है, अगर एक चीज स्टार्टिंग में पकड़ में आ गई आप कर पाएंगे. सोचिए. यस, एनी आइडिया? अब थोड़ा सोचें. वो दोनों भी इंडिपेंडेंट हो गए ना सर. यस दे रखे हैं. यस, तो मेन तो एक यही है, बट उसके लिए देखिए मैं एक सिंपल हिंट देता हूं फॉर अ सेक ऑफ इजीनेस. लेट मी कंसिडर p of a as x and this as y. Now since a and b are independent, so a dash and b will be also independent, which means
if this is 2 over 15, so this means P of A dash into P of B is 2 over 15, or P of A dash means 1 minus X. P of A is X, so P of A dash is 1 minus X, and this is into Y, which is 2 over 15. This is first condition. Again, we have the another condition, which is P of A intersection B dash is 1 over 6. Again, they both are independent. So A and B dash, they will be also independent. And now this time X into 1 minus Y becomes 1 by 6. The role of independent events is over. Now it is a question of class 10th. How? You have two equations in two variables, solve them together to get the value of X and Y. Also altogether, remember they are X and Y are probabilities. So they must lie between 0 to 1. So few cases might be get rejected later on. But anyway, how to start? कैसे solve करना mind में आ रहा है? This question came in CBSE 2015 as a 6 marker. और इमेजिन अ सिचुएशन, नॉर्मली यही रहा कि बेस थ्योरम है या रैंडम वेरिएबल, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक. इंडिपेंडेंट से आता नहीं है, आएगा तो 1 नंबर का या 2 नंबर मैक्सिमम है, इट मे कम, बट दिस वाज द ओनली क्वेश्चन इन ऑल द 3 सेट्स, 6 मार्कर एंड विद नो चॉइस. तो एनीवे, मैं आपको सिंपल वे बता देता हूं, बहुत ध्यान से सोचिए, इजी है. फ्रॉम 1 आप y की वैल्यू एलिमिनेट कर लो. ये रहा y, कितना हो गया 2/15, और ये आ गया यहाँ 1 माइनस एक्स. इसे यूज कर लेता हूं सेकेंड इक्वेशन में. तो x इंटू 1 माइनस वाई, and this is equal to 1 by 6. Observe that finally now we are having the equation in only one variable and it will be a quadratic. देखिए कैसे. इसके बाद तो यही एलसीएम लिया अंदर, तो यहां कितना आ जाएगा 15 minus 15x and then minus 2, and this is 1 over 6. तो x into 13 minus 15x, राइट, और ये 6 भी यहां ले आता हूं और ये क्रॉस मल्टीप्लाइज, एंड 15 into 1 minus x. 6 और 15 3 पे कैंसल, ये आ गया. सो दिस विल बी 2x. अब ओपन द ब्रैकेट वगैरह सिंपल करना है, तो ये हो जाएगा 26x माइनस 30x स्क्वायर, and this is equal to 5 minus 5x. Rearrange the terms. 30x square minus 5x minus 26x plus 5 is 0. Or ultimately 30x square minus 31x plus 5 is 0. So you will get a quadratic equation in x. Anyone splitting the middle term कुछ हो रहा है? अब क्वाड्रेटिक भी बन जाती है, बट उसमें भी हो सकता है अटक जाए, तो प्लीज एक बार इसको ध्यान से देखिए. minus 25x minus 6x. Okay, yes. So 30x square minus 5x minus 6x. So यहां से क्या कॉमन, 5x, 1 कॉमन, minus 1 in fact.
So 5x minus 1 into 6x minus 1 is 0, which सर वो gives, 25x है। oh sorry 25, या तो कितना आ गया, 5x कॉमन लिया, 6x माइनस 5, ठीक है वो लिखने में कर दिया जल्दबाजी में, या सो 6x माइनस 5, तो x की वैल्यू 1/5 और 5/6 आ गई। यहां तक क्लियर है? डेफिनेटली इसके बाद केस 1 केस 2 आएगा व्हेन x इज 1/5। तो अब आप कहीं पर भी वैल्यू को ये पुट कर देंगे टू गेट द वैल्यू, तो फर्स्ट में पुट कर देते हैं, तो y विल बी 2/15 एंड देन 1 minus 1/5, so that would be 2/15 into 4/5, that will be 2/12, which is 1/6। तो केस 1 में तो आपके सामने क्लियर कट आंसर है 1/5 एंड 1/6, और ऐसे ही हम लेंगे केस 2। एक आंसर यहां से आ चुका है, केस 2, व्हेन x इज 5/6, x को रखा 5/6, so that would be 2/15 into 1/6, वो ऊपर आकर चलो कितना हो जाएगा, into 6, so that is 4/5। तो रिक्वायर्ड आंसर क्या हो गए आपके पास, P ऑफ A केस 1 से और P ऑफ B 1/6, और दूसरा आंसर भी यहां रिजेक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि प्रोबेबिलिटीज आ गई हैं 0 से 1 के बीच में ही। तो दिस इज योर फाइनल रिक्वायर्ड आंसर। मैंने कंप्लीट क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है, प्लीज चेक इट आउट। नाउ आई एम फोकसिंग इन द चैट बॉक्स, एक बार मुझे बता दीजिए, इज इट क्लियर, y और n, so that I will mark your attendance as well। तनिष्क गुप्ता, ओके ठीक है, सुनिधि, कार्तिक, शुभांगी, तन्मय गर्ग, मन्नत, रमनीत, जयादित्य, लक्ष्य, विशेष, आर्यन पांडे, सार्थक, परिधि, हिमांशी, आकांक्षा, केशव, आर्यन सिंह, वंश, चिराग, संजना, नमन, प्रणव, तनिष्क गर्ग, प्रणव, ओके, हिमांशी भास्कर। अगर कोई डाउट है तो दैट ऑल्सो यू कैन ऑलवेज से, मैं बार बार कहता हूँ ये नहीं कि हर्षप्रीत ओके कि सिर्फ वाई लिखा हुआ मुझे अच्छा लगता है, अगर नहीं समझ आया आई विल एक्सप्लेन दैट अगेन। बट हाँ, फंडामेंटली अगर ये पहला जो चीज यहां लिखी है मैंने टू लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज बेस्ड ऑन द 12th क्लास। फर्दर वंस आई हैव इक्वेशन नंबर 1 and 2, दिस इज द वे हाउ यू लर्न इन क्लास 10th, कैसे सॉल्व करना है टू इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। मैंने y को एलिमिनेट करा था, आप सेकेंड इक्वेशन से x को एलिमिनेट कर सकते थे यहां पर, फिर उसको फर्स्ट में पुट कर देते, इवन देन obviously the final product, the final answer would be the same। This is a simple question, बताइए आंसर।
3/5 आ रहा है सर इसका तो। अच्छा, मुझे भी आंसर नहीं पता है, बस सिंपल है, इतना पता है। ये तो होमवर्क में दिया था ना सर आपने। अच्छा, ये होमवर्क वाला आ गया। ओके ओके, हाँ हाँ, मैंने लास्ट में एक दो क्वेश्चन होमवर्क के भी रख दिए थे यहाँ। What is the probability that the target will be hit if both A and B shoot? ओके ठीक है, तो आपको सिर्फ एक्चुअल में निकालना क्या है, सर हिट 3 कब बाय 5 होगा। ही आएगा। एक ने कर दिया, बी का नहीं हुआ, अदरवाइज ए कुडंट हिट, बी का हो गया। और तीसरा केस बस ये जो हम भूल सकते थे, हो सकता है दोनों ही एक साथ हिट कर दें। एंड ऑफ कोर्स दे आर इंडिपेंडेंट, लिखा नहीं है क्वेश्चन में, फिर मैं बार बार कहता हूं, ये आपको सोचना है कॉमन सेंस से कि दे आर इंडिपेंडेंट। रीजन आउट कर देना इसको अलग करने का, कि सिंस ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, सो इज ए एंड बी डैश एसेट्रा। ओ सॉरी, ये तो अलग अलग करके लिख के दिखाना है ना, तो पी ऑफ ए डैश इंटू पी ऑफ बी, और प्लस में पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, एंड सो ऑन। फिर ये भी आपको होमवर्क में ही दिया था। इनफैक्ट आपकी तरफ से किसी ने भेजा था, आई कुडंट गेट द टाइम टू चेक दैट होमवर्क वाला पार्ट। A problem in mathematics is given to 3 students whose chances of solving it correctly, ये आपको given है, so half, 1/3 and 1/4. What is the probability that only one of them solves it correctly? तो only one का मतलब सिंपल, फिर वही लॉजिक है, ए ने कर दिया, बी भी नहीं कर पाया, सी भी नहीं कर पाया, या क्या हो सकता था, सिर्फ बी ने कर लिया, क्योंकि ओनली वन की बात किया है। और थर्ड पॉसिबिलिटी, ओनली सी वॉज एबल टू डू इट। ऑफ कोर्स दे आर इंडिपेंडेंट, यू कैन इजीली सॉल्व। वैसे आपको अभी ऑफिशियली बता दिया जाएगा वेरी सून, योर प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस विल बिगिन फ्रॉम 4th January। तो बाकी डेट शीट क्या है या किस तरह का रहेगा, हाँ ये जरूर है कि अब आपके वो 40 मार्क का जैसे फर्स्ट टर्म में रहा था वो नहीं होगा। इट विल बी द कंप्लीट 80 मार्क्स का 3 आवर्स का पेपर, क्योंकि अब बोर्ड आ चुके हैं नियर बाय, राइट। तो वो बोर्ड कब डेट शीट अचानक से वो रिलीज कर दे, टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन, नो वन नोस। इसीलिए वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड मेंटली एज वेल, और अब उस हिसाब से ही रखना है। तो बी वेरी सिंसियर एंड फोकस्ड। सॉरी, Pre board will be once only or twice? नहीं इट विल बी इनिशियली ओके, प्री बोर्ड 1 एंड प्री बोर्ड 2 वो तो बाद में होंगे। एक प्री बोर्ड फरवरी में होता है, अब थोड़ा सा पोस्टपोन्ड हुआ है सिस्टम, तो उसमें सिर्फ है कि एक प्री बोर्ड जनवरी में होगा आपका, और एक प्री बोर्ड फरवरी में। अब फरवरी में हो सकता है वो 15 फरवरी से हो, दैट डिपेंड्स के व्हाट अबाउट योर प्रैक्टिकल्स का ऑफलाइन में रहेगा, किस तरह से सीबीएसई की इंस्ट्रक्शंस आती हैं। सो इनफैक्ट एज ऑफ नाउ नो वन इज क्लियर। तो अभी और एग्जाम्स का भी यही सोचा यह जा रहा था कि इट मे बी द ऑफलाइन एग्जामिनेशन, के स्टूडेंट्स मे बी कॉल्ड इन द स्कूल, बट प्रैक्टिकली दैट सीम्स टू बी नॉट पॉसिबल, राइट। तो इसीलिए चाहे ऑनलाइन मोड में ही रहेगा, बट माय पॉइंट इज अब जो आपने ईमानदारी से यहाँ नंबर लाए वही आपको डिसाइड करवाएंगे प्री बोर्ड 2, और प्री बोर्ड 1 और 2 से आपको अपना एवरेज निकाल लेना, आपको आइडिया लग जाएगा आपकी बोर्ड की क्या तैयारी है। तो दोज हु आर टेकिंग इट वेरी लाइटली, और कि कोविड का बेनिफिट वो कहीं नहीं मिलेगा। अगर मिलना होता तो सीबीएसई ने इतनी चीजें और जो एक्स्ट्रा कर दिया है, दे कुड हैव स्टॉप्ड, बिकॉज दे नो इट कि ठीक है, दे आर बिलीविंग इट कि द क्लासेस आर गोइंग ऑन वेरी वेल इन इंडिया एज वेल, राइट। तो नॉट ओनली द पब्लिक स्कूल, हर जगह, तो आपको उस हिसाब से अपने आप को बिल्कुल प्रिपेयर रखना है। तो 4th जनवरी से टेंटेटिवली आपके प्री बोर्ड 1 रहेंगे। सिलेबस में मैं आपको बता देता हूं, उसमें प्री बोर्ड 1 के अंदर पॉसिबली कोई एक चैप्टर हर सब्जेक्ट में हम ना लें,
वो प्री बोर्ड 2 के पेपर में कंप्लीट आएगा। माने प्री बोर्ड 1 में आपका सिर्फ चैप्टर 1 नहीं आएगा, जैसे हमने रिलेशन फंक्शंस को नहीं किया है, सो दैट इज द ओनली चैप्टर विच विल नॉट गिव इन द प्री बोर्ड 1। प्री बोर्ड 1 के बाद फिर वो आपको टॉपिक करवा दिया, और फिर प्री बोर्ड 2 में ऑफ कोर्स पूरा रहेगा। एंड वी डू हैव अ trend of having the pre-board 3 also, but that is only for the selective few students। दो कैटेगरी के, एक जो बिल्कुल कुछ नहीं कर पाते हैं और एक जो बहुत अच्छा कर रहे होते हैं। तो प्री बोर्ड 3 में हम दो तरह के पेपर बनाते हैं, एक होता है बहुत बेसिक लेवल का और एक होता है थोड़ा टफ और एडवांस लेवल का। तो वो उस तरह के प्री बोर्ड 3 वो बात की बातें हैं, वो फिर आपको पता चलते रहेगा। तो मतलब मेरा पॉइंट ये है, ऑफिशियली आएगा भी मान लो एक हफ्ते बाद या जो भी रिटर्न में है, अचानक से लगे, इसलिए प्लीज बी प्रिपेयर्ड एंड टेक इट वेरी वेरी ऑन अ सीरियस नोट। Check out this question. ये भी होमवर्क में ही मैंने फिर दिया होगा आपको। 3 critics review a book. For the 3 critics, the sorry, ये odds in favor वाला दे दिया। No, this is not in the syllabus. I'm sorry, ये मैंने word को पढ़ा नहीं। Odd in favors वाला concept जो है वो not in syllabus है। ये आज से 12 साल पहले के syllabus में हम ये पढ़ाया करते थे। तो leave this particular question। ये वाला करके बताइए एवरीवन, 2 मिनट्स विद यू। सोचिए इस क्वेश्चन। फाइव बाय सिक्स आएगा सर। आंसर नहीं है वो, बस अभी हम देख लेते हैं, बाकी भी सब कर लें। मीनवाइल बिगनिंग की ये चीजें तो मैं लिख लेता हूं, P of A, P of B एंड P of C। सर 5/6 आ रहा है। अच्छा चलो एक बार चेक कर लेते हैं। बस अब मेन ये चीज है, लैंग्वेज से इंटरप्रेट करना, क्या निकालना है। What is the probability that the target is hit by at least 2 persons? At least 2 person का मतलब A B ने कर दिया, से C नहीं कर पाया। A, चलो इसमें दो ने करना है ना, चलो मैंने A और C से करवा दिया, और फिर क्या होगा, B और C ने कर दिया। Is there any case which is pending?
या हो गया? तीनों ने कर दिया। या तीनों ने। तीनों ने, यस। एट लीस्ट टू, तो 2 पर्सन हिट करें या तीनों के तीनों हिट कर दें। सो ऑफ कोर्स आपको पता है फिर वो इंडिपेंडेंट वाला कंसेप्ट लग जाएगा। सो ये स्प्लिट हो जाएंगे। रीजन आउट मैं बार बार कह रहा हूं, प्लीज करते चलना। कई बार एग्जामिनर इसी का हाफ मार्क डिडक्ट कर लेंगे चाहे आंसर सही आ रहा है, क्योंकि ये अचानक से नहीं होगा। ये आपके पास सिचुएशन ऐसी रही है कि इंडिपेंडेंट हो जाएंगे ये भी आपस में। तो आपने शॉर्ट में तो 1 मिनट से कम में आंसर निकाल सकते हैं अगर लॉजिकली सोच लिया। दी प्रेजेंटेशन अगेन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये तो पक्का है ये 1 मार्कर तो क्वेश्चन नहीं है। तो उसके हिसाब से दी प्रॉपर मेथड एंड द सॉल्यूशन इज रिक्वायर्ड। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। क्योंकि वो ये अब इंट्रोडक्शन का भी टाइम नहीं है, वी हार्डली हैव 2 minutes. So if you have any doubt, you can ask. So please complete till independent events exercise 13.2 और जो आपको असाइनमेंट से मैंने अपनी क्वेश्चंस दिए हैं। ओके, चलिए ठीक है, फिर यू कैन लीव द क्लास सर, नाउ। यस, Sir, ये हमारे को एज्यूम, okay, बोलो। ओनली वन बाय वन। मैं बोलूँ सर, ये हमारे को एज्यूम करके चलना पड़ता है कि इंडिपेंडेंट है। या सी वो, हाँ बिल्कुल, इन नंबर ऑफ केसेस ये लॉजिकली आपको पता चलता है कि अगर आप खुद सोचो इसी गिवन प्रॉब्लम में अगर एबीसी शूट कर रहे हैं किसी टारगेट पे, तो वो एक दूसरे से पूछ के थोड़ी शूट करेंगे। वो उनकी अपनी कैपेबिलिटीज हैं, दे आर वर्किंग ऑन देयर ओन। सो दे में हिट दी टारगेट और दे में नॉट हिट दी टारगेट। तो एक करेगा या नहीं करेगा उसका बी से कोई लिंक नहीं है, बी की अपनी अलग आइडेंटिटी है। तो इसीलिए दे आर इंडिपेंडेंट। ओके सर। और कौन पढ़ी थी या कौन पूछ रहा था? और आई डोंट नो। Sir, I was asking this only, that question अच्छा, given near independence. So, yeah. या ओके ठीक है। सो आई थिंक नाउ इट इज बीइंग आंसर्ड। ओके, चलिए यू कैन लीव द मीटिंग नाउ। आकांक्षा, परिधि, युवराज, Akanksha and Yuvraj are still in the class. I have to remove them. Okay, Akanksha and then Yuvraj.